नया मुरादाबाद स्थित न्यू डेल्स मॉन्टेसरी स्कूल में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और संचार कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय इंटर हाउस न्यूज़ ब्रॉडकास्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न हाउस के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और न्यूज़ चैनल के एंकर, फील्ड रिपोर्टर तथा संवाददाता की भूमिका निभाते हुए अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने देश विदेश, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक सरोकार और समसामयिक घटनाओं जैसे विभिन्न विषयों पर समाचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने समाचार वाचन की शैली, स्पष्ट उच्चारण, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़ और मंच संचालन की बेहतरीन क्षमता का परिचय दिया। कई प्रतिभागियों ने लाइव रिपोर्टिंग और स्टूडियो प्रस्तुति का वास्तविक अनुभव प्रस्तुत कर दर्शकों और निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। Sports session. I'm Ibadi, reporting to you from New Delhi. Let's begin with some exciting news coming from the world of sports. First, the headlines: Vaibhav Suryavanshi smashes 94 runs in just 29 balls. In hockey, Team India defeats the Netherlands by 3-2. Football fans around the world are in for 2 blockbuster matches: Spain versus France, England versus Argentina. 2 matches, 4 giants and 1 dream, the World Cup trophy. England secured their place in the Final Four after defeating Norway 2-1 in a thrilling quarter-final. The 3 Lions showed great determination and are now just... I am Nabhisheka Nagala of Class 5B and you are watching the Space News Live. Today, I will share exciting news about space and a special report on astronaut Sunita Williams' space journey. The space star Sunita Williams is a NASA astronaut who has inspired the whole world with her incredible achievements in science. She was born in 1965 in a place called Euclid, Ohio in the USA. We are proud of Sunita Williams because she is of Indian origin. Her father belongs to Gujarat. So Rajput reporting live from Indian News News. And today we are coming to you straight for a big event happening at Needles Montessori School. Camera person, can you show our viewers what is happening around us? As you can see, we have students from class 5 who are gathered here for today's exciting news broadcast. Participants are dressed up. Some look calm while some are trying to hide their nervousness. But one thing is common: everyone is eager to give their best today. And right over here, we have our respected principal sir, coordinator ma'am, and our judges who have the very important task of selecting today's best performers. Now let's meet one participant. Hello, Sana. My name is Musaib Abbas. Are you ready to perform on the stage? Yes. That's wonderful. Now let's talk to some of our judges as well. Hello ma'am, what do you think about today's performances? I feel it's very interesting. I'm enjoying all of them very much. That's great to know. Thank you so much ma'am. Camera person, let's take one last look around the hall. What an incredible atmosphere. Smiling faces, excited participants, supportive teachers and judges ready to witness some amazing performances. कार्यक्रम के समापन अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य अंकुर गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर निखिल गुप्ता और स्कूल कोऑर्डिनेटर आरोही मैडम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य अंकुर गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होती, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और मंच पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने की कला को विकसित करने का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्रभावी संवाद और प्रस्तुति कौशल हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है।
इसीलिए विद्यालय समय समय पर ऐसी गतिविधियों का आयोजन करता रहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों ने भी बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो वे अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने कई प्रसिद्ध न्यूज़ चैनलों के एंकरों की शैली को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया तथा ये बताया कि समाचारों का चयन, प्रस्तुतिकरण और प्रसारण किस प्रकार किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रतियोगिता की सफलता का श्रेय शिक्षिकाओं और अभिभावकों को भी दिया। शिक्षिकाओं ने बच्चों को समाचार लेखन, उच्चारण और प्रस्तुति का प्रशिक्षण दिया। वहीं अभिभावकों ने घर पर अभ्यास कराने और बच्चों का उत्साहवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक रहा और प्रतियोगिता ने सभी को एक वास्तविक न्यूज़ स्टूडियो का अनुभव कराया। काशिफिया न्यू डेल्स मॉन्टेसरी स्कूल में कल और आज हमारा न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कंपटीशन हुआ है, जहाँ पे बच्चे जर्नलिस्ट बनकर आए हैं, न्यूज़ रीडर बनकर आए हैं, एंकर बन के आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कल और आज न्यूज़ प्रेजेंट करी। इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव टू सी देम इतनी छोटी एज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा। क्या मकसद रहता है सर ऐसे? मकसद ये रहता है कि देखिए जो बच्चे हैं ये इनके अंदर क्या हुनर है शायद इनको खुद नहीं मालूम रहता है, और एक स्कूल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हम करा सकें, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा सकें, वो बच्चों के लिए बेहतर होगा। उससे हमें भी और बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को ये पता चलेगा कि बच्चे की इंटरेस्ट जो है इस पर्टिकुलर लाइन में। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है, एक एक्सपोजर देना, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना। अराउंड कितने बच्चों ने भाग लिया? अराउंड 80 चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे? डेफिनेटली हम ये इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस बेसिस पे एवरी ईयर we keep doing, and it is always appreciated by the parents.